गुड इवनिंग यू ऑल. सो वे वी कहाँ थे हम लोग? अल्ट्रासोनिक साउंड वी हैड डन ना? ओके. So today is our last class for sound. However, we will be revising the chapter in next class. Write the first topic for today: characteristics of sound. And there will be three characteristics: loudness, pitch and quality. Second one, factor on which loudness depends. Third, factor on which pitch depend. And last one, factor on which quality depend. Write it down, everyone. Have you all written? Everyone? Everyone? Yes, sir. So, first topic we have for today, characteristics of sound, and all the topics are related to that, as you can easily observe this. These topics are very important because today we are going to know how to distinguish between two sounds, how to differentiate between two sounds. As I had discussed it in your intro class, remember it guys, I had discussed how you can differentiate between the voice of Arijit Singh and Honey Singh. How can you differentiate the sound between a dog and a cat? How can you differentiate between the sound of Anurag sir and Prakash sir? In fact, if the video is not visible, in fact you cannot watch a person. Only by listening the sound you can differentiate who is speaking. In fact, you experience it on phone calls. So how these can be differentiated, that topic is very important, and today we are just going to discuss that, known as characteristics of sound. One thing you must remember, that we have also discussed characteristics of wave. In fact, that was not only the topic, that is characteristics of wave, that is characteristics of sound wave. There were 5 characteristics: first wavelength, second amplitude, third frequency, fourth time period, and fifth wave velocity or wave speed. That was about wave, means that characteristics includes not only with sound but also with light. But here the 3 characteristics which we are going to discuss, these are only about sound. Means a sound has loudness, a sound has pitch, a sound has quality. But the wavelength, the frequency, the time period, the amplitude, the wave velocity or wave speed, that was associated not with only sound but also with light. Means that was for wave. So there are 2 different topics, please remember. First one was what we discussed in the first lecture, that was characteristics of wave, and right now we are going to discuss characteristics of sound wave. So there are 3 characteristics: first loudness, second pitch, and third quality. First comes loudness. Loudness is the amount of sound reaching in our ear per second.
इज कॉल्ड लाउडनेस। हमारे कान में हर सेकेंड जितना साउंड जाता है उसे आप लाउडनेस कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपने मतलब डिस्कस तो करते ही है, आवाज लाउडर है या आवाज फेंट है, आवाज तेज है या आवाज कम है। जैसे दो एग्जाम्पल आप ले लो। एक एग्जाम्पल आपके क्लासरूम का, आपके स्कूल में तब बोलते हैं जब आपके टीचर क्लास में होते हैं और आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एक वो आपका लाउडनेस है, और दूसरा जब टीचर क्लास में नहीं है और तब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। क्या दोनों वॉइस सेम होते हैं क्या? No, sir. नेवर ना। तो लाउडनेस बढ़ जाता है अपने आप आपका, है ना, सब चिल्ला रहे होते हैं। लाउडनेस को आप डेसिबेल में रिप्रेजेंट करते, मेजर करते हैं, और ये एक ट्रेडिशन है कि इसको स्मॉल डी लिखते हैं और कैपिटल बी लिखते हैं। तो जैसे डीजे जो साउंड है, तो डीजे जो होता है उसका जो स्पीकर्स होता है उसका लाउडनेस बहुत ज्यादा होता है उस साउंड का, इस वजह से वो हमारे ईयर्स के लिए इरिटेटिंग होता है और हमें सजेस्ट किया जाता है कि लंबे टाइम तक हमें नहीं सुनना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि लाउडनेस ज्यादा है या कम? मतलब ये कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा, और आंसर है लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मींस जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका लाउडनेस ज्यादा, और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा उसका लाउडनेस भी कम होगा। अब आप कंपेयर करो, मैं ग्राफ के हेल्प से आपको बता रहा हूं, और नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को बताइएगा। दो साउंड को कंपेयर करना है, एक साउंड ए है, दूसरा साउंड बी है। एक ये वाला साउंड है और एक ये वाला साउंड है। बताइए कौन है लाउडर, ए या बी? सारे लोग बताइए। ए है ना? क्यों बच्चा? क्योंकि ए का जो क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं ना। आप देखो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका, जबकि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, ये है। तो बी का एम्पलीट्यूड कम है तो बी का लाउडनेस भी कम होगा। तो जब आप नॉर्मल कन्वर्स कर रहे होते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो यहां पे लाउडनेस है कम। देखो ये चीजें हैं कंपेयर करने की, वही चीज है कि कोई 20। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, कंपेयर ही करेंगे हम लोग हर जगह, लाउडनेस में भी और पिच में भी। अगर कोई एक इंसान है जो 1 लाख मंथली कमा रहा है, अमीर है कि गरीब है? वन बाय वन बताइए। आराध्या, अमीर है कि गरीब है बच्चा? देखिए बोल दी आराध्या। वन बाय वन बताना है सबको, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। आराध्या कंपेयर कर, क्या कंपेयर कुछ नहीं। 1 लाख मंथली कोई कमा रहा, अमीर है या गरीब? नहीं बोल सकते? ओके, आर्यन, अभिनव, प्रतीक, सक्षम, ये एक ए है इंसान जो 20,000 मंथली कमा रहा है, और बी 1 लाख मंथली कमा रहा है। बी अमीर हुआ कि गरीब हुआ? लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए 10 लाख मंथली कमाने वाले से, तो एक बी क्या हो गया? गरीब हो गया। तो ये सारी चीजें हैं कंपेयर करने की। अब इसी को अगर आप कंपेयर कर ले ऐसे वाले साउंड से जिसका ये है एम्पलीट्यूड, तो फिर सी से ये क्या हो गया? बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, मतलब लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगा। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं है, आपको कंपेयर करना होता है। तो कंपैरेटिवली जहां पे लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो वहां पे लाउडनेस भी ज्यादा होगा,
और कंपैरेटिवली जहां पे एम्पलीट्यूड कम हो लाउडनेस भी कम होगा। तो लाउडनेस है क्या, जितना साउंड हमारे कान तक पहुंचता है पर सेकेंड उसे आप लाउडनेस कहते हैं। इसका एसआई यूनिट डेसिबल है जिसे डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाउडनेस एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस एम्पलीट्यूड जहां ज्यादा होगा लाउडनेस भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड जहां कम होगा लाउडनेस भी कम होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको कंपैरेटिवली बताते हैं। अब आप जैसे नॉर्मल, अभी जैसे आप एक नॉर्मल शॉपकीपर के पास आप गए और आपका जो बातचीत हो रहा है, और दूसरा आप मछली मार्केट में, फिश मार्केट में चले गए या वेजिटेबल मार्केट में चले गए, तो ये आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फिश मार्केट में जो है आवाज तेज आ रही है क्योंकि कलेक्टिवली आवाज आता है, सब चिल्ला रहे होते हैं ये ले जाओ वो ले जाओ। हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दो साउंड के बीच कि आवाज लाउडर है या नहीं है। जैसे कोई चिल्ला रहा होता है तो हम पहचान लेते हैं कि वो आवाज लाउडर है, कोई धीरे बोल रहा होता है तो हम पहचान लेते हैं वो आवाज लाउडर नहीं है। लेकिन तब क्या हो कि अगर किन्हीं दो साउंड का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, मतलब लाउडनेस सेम हो जाए, और फिर अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो फिर आप पिच के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। पिच जो है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आइडिया देता है अबाउट द श्रिलनेस ऑफ साउंड और ग्रेवनेस ऑफ साउंड। आवाज श्रिल होगा या ग्रेव होगा। श्रिल का मतलब आवाज पतला होगा और ग्रेव का मतलब कि आवाज मोटा होगा। जैसे ये हमारा एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि बॉयज का जो आवाज होता है वो ग्रेव होता है, जबकि गर्ल्स का आवाज जो होता है वो श्रिल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिच में डिफरेंस होता है। तो पिच से आपको आइडिया मिलता है, हाई पिच अगर होगा तो आवाज श्रिल होगा और अगर लो पिच हुआ तो आवाज ग्रेव होगा। तो गर्ल्स का पिच हाई होता है नॉर्मली, इसलिए वो आवाज श्रिल होता है, और बॉयज का लो पिच होता है नॉर्मली, इसलिए उनका आवाज ग्रेव होता है। एक और चीज है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका भी पिच हाई होता है, इस वजह से उनका आवाज जो होता है वो श्रिल होता है। तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई लड़की बोल रही है या कोई लड़का बोल रहा है। और पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फ्रीक्वेंसी का। ये चीज आपको याद रखना है कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको दो साउंड में दे रहा हूं और आप इनको डिफरेंशिएट कीजिए। एक हो गया आपका ये वाला साउंड ए, और दूसरा हो गया ये वाला साउंड बी। बताइए पिच किसका ज्यादा है? बी का डेफिनेटली पिच ज्यादा है क्योंकि बी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कैसे पता चला? नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना वेव कंप्लीट होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप देखो यहां एक सेकेंड में इतना ही हो रहा है, जबकि यहां पर इतना ज्यादा हो गया, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगा। एज आई डिस्कस्ड विथ यू, फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर पिच विल बी मोर, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस पिच विल बी लेस। तो अगर किसी आवाज का श्रिलनेस बढ़ाना हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है। तो आवाज पतला है या आवाज मोटा है ये हम लोग पिच से इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर लाउडनेस सेम भी हो तो भी पिच डिफरेंट रहेगा तो हम आवाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है कि अगर एम्पलीट्यूड, मतलब अगर आपका लाउडनेस भी सेम हो और अगर आपका पिच भी सेम हो और फिर हमें दो साउंड को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपका क्वालिटी आता है। और क्वालिटी क्या है? द वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय any musical instrument or a person is called quality। और क्वालिटी नॉर्मल डिपेंड किस पे करेगा? शेप पर। डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का शेप कैसा है इस पे डिपेंड करेगा क्वालिटी। कैसे मैं बता रहा हूं, आप ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है आपका। आप कहीं पे अगर गिटार बज रहा होता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कहीं पे वायलिन बज रहा होता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
कहीं पे फ्लूट बज रहा होता है तो आप आइडेंटिफाई, बिना देखे आप आइडेंटिफाई, ड्रम बज रहा है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि सबका वेव फॉर्म अलग है। जैसे अगर आप कंपेयर करें तो फ्लूट जो होता है वो ऐसा वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और गिटार जो होता है वो ऐसा प्रोड्यूस करता है। तो अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि अगर आपका लाउडनेस सेम भी हो, अगर आपका पिच सेम भी हो, तो भी हम दो साउंड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्वालिटी से। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि क्वालिटी का दूसरा नाम टिम्बर है, और ये वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है, यही शेप पर डिपेंड करता है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आवाज? अमिताभ बच्चन अगर बोल रहा होता है तो हमें नहीं पता चलता है कि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए हमें पता चलता है क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो वेव फॉर्म है वो अलग है, हनी सिंह का वेव फॉर्म अलग है, अरिजीत सिंह का वेव फॉर्म अलग है, किशोर कुमार का अलग है, सबका अलग है। आप नोटिस किए होंगे कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो किसी का कॉपी, किसी का साउंड कॉपी करते हैं, किसी के स्टाइल कॉपी करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो अमिताभ बच्चन का आवाज लगभग उन्हीं की तरह का निकाल लेते हैं, या नरेंद्र मोदी का, या लालू यादव जी का, जो भी पॉपुलर फिगर है। तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली उनके वेवफॉर्म को कॉपी करते हैं। वो एक तो वो नोटिस करते हैं कि वो कौन कौन सा वर्ड्स है जो वो बोलते हैं, किस वर्ड पर वो जोर देते हैं, किस वर्ड पर नहीं देते हैं। जैसा भी अर्णव गोस्वामी का बहुत कॉपी किया जा रहा है। तो ये सब वो चीजें हैं जिसमें आप अगर लाउडनेस, पिच और क्वालिटी तीनों मैच करा दिए तो फिर आप उस आवाज को कॉपी कर लेंगे। मतलब अगर लाउडनेस, पिच और क्वालिटी तीनों में कोई भी एक सेम ना हो, मतलब तीनों में कोई भी एक डिफरेंट ना हो, मतलब तीनों ही सेम हो जाए, तो फिर आवाज को डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद एक टॉपिक आपका ह्यूमन ईयर आता है। तो ईयर का बस 3 पार्ट्स है जो आपको जानना है। एक आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। आउटर ईयर में आपका वही पीना होता है जो आप ये वाला शेप देख रहे हैं, आवाज यहाँ आता है, टकराता है, और इन ईयर कैनल से होते हुए अंदर जाता है। अंदर जाता है तो 3 बोन्स होते हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रप। ये तीनों में आवाज टकराता है जिससे आवाज का इंटेंसिटी बढ़ता है, और फिर वो कॉचलिया लिक्विड से होते हुए हमारे ब्रेन तक, वो कॉचलिया लिक्विड से जो होता है नर्व, वो कनेक्टेड होता है और ब्रेन फील करता है कि क्या बोला जा रहा है। इस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर वर्क करता है। तो ये चैप्टर यहीं पर आपका खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। और यही 3 के बारे में पढ़ना था कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, पिच किस पे डिपेंड करता है और क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़े कि अमाउंट ऑफ साउंड रीचिंग इन आवर ईयर पर सेकेंड इज कॉल्ड लाउडनेस। हमारे कान तक कितना आवाज पर सेकेंड पहुंचता है, इसे हम लोग लाउडनेस कहते हैं। और ये जो है वो डिपेंड कर, ये डेसिबल में मेजर होता है और डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक ट्रेडिशन है कि स्मॉल डी और कैपिटल बी लिखते हैं। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर, लाउडनेस विल बी मोर, एंड इफ द एम्पलीट्यूड इज लेस, लाउडनेस विल बी लेस। तो मैंने एग्जांपल आपको बताया ये ए और बी का, कि अगर आप कंपेयर करें तो आप देखो यहाँ पे लाउडनेस ज्यादा है इस साउंड का, जबकि इस साउंड का लाउडनेस कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसलिए लाउडनेस ज्यादा है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है इसलिए लाउडनेस भी कम है। और वो वही चीज बता रहे थे कि रिलेटिव टर्म है, आप कंपेयर करते हैं तभी आपको पता चलता है। नेक्स्ट आपको ये बताया गया कि पिच जो है वो बताता है किसी भी साउंड का श्रिलनेस और ग्रेवनेस, कि आवाज श्रिल है मीन्स आवाज पतला है, या ग्रेवनेस आवाज मोटा है कि नहीं। मतलब आप ना अगर लाउडनेस सेम भी हो तो पिच में अगर डिफरेंस होगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 डिफरेंट साउंड्स को। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर, पिच विल बी मोर, इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस, पिच विल बी लेस। अब है क्या ना कि जैसे एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हमारा कि गर्ल्स का आवाज श्रिल होता है, बॉयज का आवाज ग्रेव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल्स का पिच हाई है तो इसलिए वो आवाज श्रिल है, और बॉयज का पिच लो है इसलिए वो आवाज ग्रेव है। नेक्स्ट मैंने आपको वही ग्राफ के हेल्प से बताया कि अगर आप इस साउंड को कंपेयर करें, कंपेयर ही कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं बताया सकता इससे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ज्यादा तो ये पिच भी ज्यादा हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी है कम तो ये पिच भी कम हो गया। लास्ट था कि अगर आपका लाउडनेस और पिच
दोनों सेम हो दो साउंड्स के बीच, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है हर एक साउंड। कहीं पे ढोलक बज रहा है तो वो ढोलक एक वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है, वो एक शेप प्रोड्यूस करता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं एक वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा हूं और उसी को आप पहचानते हैं। और आप क्यों पहचानते हैं? क्या आपको कोई किताब में बताया गया कि अनुराग सर बोलेंगे तो ऐसा आवाज होगा? नो, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने फील किया है, आपके कान ने उसको नोटिस किया है। सुनते 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 आपके दिमाग में सेट हो गया है कि अनुराग सर का आवाज ऐसा ही होगा। सुनते 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 आपके दिमाग में सेट हो गया है कि लता मंगेशकर का आवाज ऐसा ही होगा या सुनिधि चौहान का आवाज ऐसा ही होगा, मतलब किसी का भी। तो आप ये सुनते हैं और ये आप नोटिस करते हैं और हर एक का अलग अलग होता है। तो इसी वेव फॉर्म को हम लोग क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी का एक नाम मैंने आपको बताया, ये टिम्बर भी कहा जाता है और ये डिपेंड करता है शेप ऑफ वेव फॉर्म पे। मैंने आपको बताया, सपोज मैंने तो दो एग्जांपल बस ले लिया था कि ये फ्लूट का है और ये गिटार का है। अलग अलग, शहनाई का अलग होगा, माउथ ऑर्गन का अलग होगा, गिटार का अलग होगा, मेरा अलग है, सबका अलग अलग वेव फॉर्म होता है और इसी अलग अलग वेव फॉर्म की वजह से आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि दो आवाज को, दो साउंड्स को आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, दो साउंड्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं। अब देखो, आप जब पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में तो वहां पे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीजें थे, वो सारी चीजें यहाँ पर एज फैक्टर्स यूज हो रही हैं। जैसे फर्स्ट आपको बताया गया कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है या पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो वो ही फैक्टर्स हैं। लेकिन चीज ये समझना है आपको कि वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया गया था वो साउंड का नहीं बल्कि वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब साउंड एक वेव है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड में होगा, लेकिन ये जो बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन ईयर के बारे में आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में बटा होता है। फर्स्ट आउटर ईयर जो आपको दिख रहा है, ये पीना और ईयर कैनल। इसके बाद मिडिल ईयर जिसमें 3 बोन्स होते हैं, ये बोन्स का नाम आपको पता होना चाहिए, हामर, एनविल और स्ट्रिप। ये 3 बोन्स हैं जो आपके कान के अंदर होती है मिडिल ईयर में। और ये आवाज जब ईयर कैनल से अंदर जाता है, ईयर ड्रम से क्रॉस करता हुआ, तो ये हैमर, एनविल और स्ट्रिप में आवाज टकराता है। और आपको ये बात बताया गया है कि आवाज टकराएगा तो उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो वो आवाज का इंटेंसिटी बढ़ता है, फिर कॉचलिया लिक्विड के थ्रू वो आवाज जो है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन फील करता है कि क्या कुछ बोला गया है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं आप, इसी तरीके से आपका ह्यूमन ईयर वर्क करता है। एक और टॉपिक है कि हमारे ईयर का जस्ट केयरिंग कैसे करना है। तो आपको जैसे पता है कि ईयर, हम आई के बाद ईयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। एज सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो केयरिंग कैसे करेंगे आप? अब कुछ चीजें हैं जिनको तो हमें खुद ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहला चीज है, हम लोग ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो, अब नोटिस किया मोबाइल में वो लिखने लगता है इट मे डैमेज योर हियरिंग कैपेसिटी, फिर भी हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना? तो हमें फुल साउंड में आवाज, अगर आप फुल साउंड में म्यूजिक सुन भी रहे तो बहुत देर तक नहीं सुनना चाहिए, थोड़ी देर सुने। टीवी का आवाज, वूफर का आवाज, ये सब थोड़ा धीमा ही साउंड रखना चाहिए, म्यूजिक रहे, वो नॉइज ना बने। और क्या है कि कान का हमें टाइम टू टाइम सफाई करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। एक नॉर्मल सा हमारा जो बैड बिहेवियर होता है वो ये है, एटिकेट हमारा खराब होता है कि हम कान में कुछ भी डालते रहते हैं, लाइक माचिस की तिल्ली डाल के साफ कर रहे हैं या पिन डाल के साफ कर रहे हैं या पेंसिल डाल के साफ कर रहे हैं। ये सब गलती से भी नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ ईयरबड यूज करें, ईयरबड से ही उसे सफाई करें, क्योंकि अब ईयर ड्रम काफी सेंसिटिव ऑर्गन होता है और ईयर ड्रम में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया या अगर उसमें कुछ हर्ट हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ईयर का कनेक्शन ब्रेन तक होता है तो ब्रेन को भी डैमेज वो कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पीन वीन तो एकदम गलती से भी कान में न डालें। कई बार कुछ लोग होते हैं कान में तेल डाल लिया, नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप डॉक्टर कंसल्ट करें, डॉक्टर अगर आपको कोई लिक्विड देते हैं, कोई केमिकल देते हैं तो आप यूज करें, अदरवाइज कोई ड्रॉप देते हैं तो आप यूज करें, अदरवाइज आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब केयरिंग ऑफ ईयर है जो आपको जरूर करना चाहिए। तो आज का हमारा यहीं तक है क्लास, और नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Yes, sir.